The numerical number 1, it says a door 4 meter broad can be opened by applying a force of 200 Newton normally at the middle of the door. So what we will do, we will consider a door and the width of the door is 4 meter. So let's see a rough sketch of it. Yes, let us consider a door and the width of the door is 4 meter, right? Now this door, it will be having its hinges at this point. Now if these are the hinges, so you can say here there will be the axis of rotation. So this will be the axis of rotation for the door. This is the axis of rotation for the door. Now a width of this door is 4 meter. The total width of the door is 4 meter. Now you are applying the force of 200 Newton normally at the middle of the door. See here in case 1, the force is being applied at the mid of the door. This is the force which is being applied. And this force is being applied at the distance of 2 meter. So here, first of all, as you can see that force is known to us and the distance of the force is also known to us. So knowing the force and the distance both, you can calculate the turning effect of force, that is the moment of force required to open the door. So how do we calculate the moment of force? Formula for it is force applied and the distance of the force from the axis of rotation. So here the force applied is 200 Newton and its distance is 2 meter. So the moment of force required to open the door is 400 Newton meter. So we have calculated the moment of force required. Now the same door is required to be opened with the least force. Now come to this statement. This statement is very important. Least force. Now whenever you have to apply the least force, then the distance has to be maximum. Now we are opening this door with the least force. Now least force will be possible only if you apply the force at the maximum distance. So you can say you will be applying the force at the edge, and this force is to be calculated. Force is to be applied at the edge. Now whenever it's given the least force, make sure the distance is maximum. So for this door, to apply the force, maximum distance will be only if you apply the force at the edge. So we are applying the force at the edge. So distance is maximum, so force required will be minimum. So it's the same door. So moment of force is equal to F into D. Now the moment of force will remain the same. It's the same door, that is 400. Force we have to calculate. Now for the least force, we have kept the distance maximum, that is 4. So the force required will be, so force required will be of 100 Newton. Okay, this is clear to you. Then the second numerical, they say a uniform meter rule. They have given you a meter rule. So जब भी meter rule दिया जाएगा, so you will be drawing a rough sketch of it. Meter rule में ध्यान रखिएगा, एक एंड 0 मार्किंग पे होगा, एक 100 की मार्किंग पे होगा और मिड पॉइंट 50 whenever it's a meter rule. Okay, weight of the meter rule is 20 and it is pivoted at 0 mark. तो ये जो मीटर रूल है इसको पाइवट किया गया है 0 मार्क पे. ये देखिए 0 मार्क पे इसका फलक्रम है, 0 मार्क पे फलक्रम ये 0. अच्छा, जो वेट होता है रूल का वो हमेशा उसके मिड पॉइंट पे एक्ट करता है.
तो मीटर रूल का मिड पॉइंट हुआ 50। तो यहाँ पे इसका वेट एक्ट करेगा, इसको नाम दे दो F1, दैट इज़ द वेट। और ये वाली फोर्स कितनी है 20 Gf। अच्छा, अब पूछ रहे हैं व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेसेस द रूल। अभी इस समय अगर आप देखिए तो इस स्केल के ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रही है F1। अच्छा, इस फोर्स का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फल्क्रम, अगर इसको देखिए तो डिस्टेंस फ्रॉम द फल्क्रम, ये है डिस्टेंस फ्रॉम द फल्क्रम D1। फल्क्रम है 0 पे, फोर्स है 50 पे, तो डिस्टेंस हो गया 50। अब देखिए इसमें एक ही फोर्स है इस समय। तो ये जो एक फोर्स है ये स्केल को, ये देखिए क्लॉकवाइज मोमेंट में रोटेट करेगी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि जो मोमेंट ये प्रोड्यूस करेगी वो होगा क्लॉकवाइज। और तो चलिए अब हम निकालते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट ड्यू टू F1। मोमेंट का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स यहाँ अप्लाई हो रही है 20 और डिस्टेंस है 50, तो फोर्स हो जाएगी 1000 Gf सेंटीमीटर। और जो डायरेक्शन होगा वो होगा क्लॉकवाइज। तो अगर आप देखिए तो फर्स्ट पार्ट में तो यही पूछ रहे थे व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला हो गया F इंटू डी, डायरेक्शन भी हमें बताना पड़ेगा, तो हो गया क्लॉकवाइज। तो ये फोर्स इसको डिप्रेस कर रही है, तो ये जो आपके पास स्केल है ये इस तरीके से डिप्रेस हो जाएगी ये। अच्छा, अब ये कह रहा है हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल। अब ये जो स्केल है ये इस वेट की वजह से तो ऐसे चली जाएगी, डिप्रेस हो जाएगी, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया कितना मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा है। अब कह रहा है हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल। अब इस स्केल को हमें हॉरिजॉन्टल करना है बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स। फोर्स लीस्ट है, तो देखो जब भी लीस्ट फोर्स होती है तो डिस्टेंस मैक्सिमम रखना होता है। तो इस स्केल के हम इस एज पे फोर्स लगाएंगे, तभी तो डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। तो फोर्स लगेगी इस एज पे। अच्छा, फोर्स हमें ऐसे लगानी पड़ेगी ताकि वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करे। यानी कि अगर मैं फोर्स ऊपर की तरफ लगाऊंगा, ये देखिए, तब ये वाली फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगी। भाई ये वाली फोर्स तो क्लॉकवाइज कर रही है, अगर मैंने इस वाली फोर्स को भी नीचे की तरफ लगा दिया तो ये भी क्लॉकवाइज करेगी, तो बैलेंस तो नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज हैं। तो पहला तो यहाँ आया था कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, तो पहली बात तो फोर्स अपवर्ड लगेगी। जब फोर्स ऊपर लगेगी तभी तो देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगी। दूसरा कहा था लीस्ट फोर्स, तो लीस्ट फोर्स तभी होगी जब डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। तो ये जो सेकेंड फोर्स है F2, ये हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, जो सेकेंड फोर्स है उसका डिस्टेंस कितना है, देखिए 0 से 100, तो डिस्टेंस हो गया 100 का, तो D2 हो गया 100। अच्छा, ये जो वाली फोर्स है सेकेंड, ये मोमेंट प्रोड्यूस करेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए अब हम निकालते हैं मोमेंट ड्यू टू F2। फॉर्मूला होगा F2 D2। फोर्स तो हमें पता करनी है और डिस्टेंस दे रखा है आपको 100। अच्छा, ये जो सेकंड फोर्स है ये इसका मोमेंट आ गया। अब सेकंड फोर्स का जो मोमेंट है वो तो होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमने निकाल लिया। अब चूंकि सेकंड फोर्स फर्स्ट वाले फोर्स के मोमेंट को बैलेंस कर रही है ना हॉरिजॉन्टल, तो जब भी स्केल इक्विलिब्रियम में होगी, अब स्केल इक्विलिब्रियम में आ गई, तो जब भी ये रूल इक्विलिब्रियम में होगा तो आप कंडीशन यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। तो वो प्रिंसिपल हम यूज़ कर लें, सम ऑफ एंटी क्लॉक इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट।
अच्छा, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट तो ये आया F2 इंटू 100, और सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट ये आया। भाई जब भी कोई रूल बैलेंस्ड होगी तो इक्विलिब्रियम में होगी, वो तभी पॉसिबल है जब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होंगे। इक्वेट कर दिया दोनों को। तो जो सेकंड फोर्स होगी वो होगी 10 GF। देखो, तो आपसे इसमें यही पूछा गया था, हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स। तो लीस्ट फोर्स के लिए डिस्टेंस आपको फलक्रम से मैक्सिमम रखना होगा, तो इसलिए हमने एकदम एज पे लगाई फोर्स, क्योंकि हमें डिस्टेंस मैक्सिमम रखना है। और फोर्स कितनी आई कैलकुलेट करके, 10 GF। Now numerical number 3, they say a man can open a nut by applying a force of 150 Newton by using a handle of length 0.4 मीटर। अब सपोज करिए कि ये आपके पास एक नट है और आप इस नट को अब ओपन कर रहे हैं, और इस नट को हम ओपन कर रहे हैं मान लीजिए एक स्पैनर से, और इसकी जो लेंथ है वो दे रखी है 0.4। तो देखिए यहाँ पे नट है तो यहाँ पे होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये इसका हैंडल है, तो हैंडल के एज पे आप लगा रहे हैं फोर्स। तो फोर्स आपको कितनी दी गई है, 150 न्यूटन की, और ये डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस कितना दिया है, 0.4। तो अगर हमको इस नट को खोलने के लिए जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स पता है और डिस्टेंस भी पता है, तो हम ये पता कर लें कि इस नट को रोटेट करने के लिए मोमेंट ऑफ फोर्स कितना रिक्वायर्ड है। मोमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड के लिए फॉर्मूला होगा F इंटू डी। तो यहाँ फोर्स है 150 न्यूटन का और डिस्टेंस है 0.4 का, तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन मीटर। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड। अब क्या करना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ हैंडल। अब हमको स्पैनर चेंज करना है एंड वी आर एबल टू ओपन इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन। अब हमें 60 न्यूटन की फोर्स लगानी है। अब अगर मेरे पास फोर्स 60 न्यूटन की है तो इस हैंडल की लेंथ पूछ रहे हैं कितनी होनी चाहिए। तो देखिए कैसे होगा। अब ये सेम नट है, नट तो वही है, बस हम लोगों ने ये जो स्पैनर है ये चेंज कर दिया। तो अब इसकी जो हैंडल की लेंथ है ये हमें नहीं पता है, यानी कि ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है, सॉरी डिस्टेंस हमें नहीं पता है, और फोर्स जो यहाँ पे लगेगी फोर्स वो हमें पता है कि फोर्स कितनी लगेगी, 60 न्यूटन की। अच्छा, अगर उसी नट को दोबारा खोलना है तो जो मोमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड है वो तो सेम रहेगा क्योंकि सेम नट है। सो मोमेंट ऑफ फोर्स तो उतना ही रहेगा। ये फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ फोर्स विल रिमेन द सेम 60। फोर्स हमको दे रखी है 60 और डिस्टेंस पता करना है। तो डिस्टेंस आ गया 1 मीटर, और यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसके हैंडल की लेंथ को। सो लेंथ ऑफ हैंडल हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, क्योंकि नट वही था, सेम नट, तो जितना मोमेंट पहले रिक्वायर्ड था मोमेंट ऑफ फोर्स उतना ही रिक्वायर्ड होगा, बस हमने फोर्स चेंज करी है। तो अब आपको डिस्टेंस पता लग जाएगा, यानी कि लेंथ ऑफ द हैंडल। अब देखिए इसमें क्या दिया, 1/2 मीटर स्केल।
एक हाफ मीटर स्केल है, तो अगर हम यहाँ पे हाफ मीटर स्केल बनाएं तो हाफ मीटर स्केल का मतलब होगा इसकी ज़ीरो मार्किंग से लेकर के लास्ट मार्किंग 50 होगी। हाफ मीटर स्केल है और इसका जो मिड पॉइंट है वो होगा 25 पे। अब ये कह रहा है हाफ मीटर स्केल इज पाइवटेड एट द सेंटर, इसको सेंटर पे पाइवट किया गया है। अब ये ध्यान रखना कि कोई भी स्केल अगर सेंटर पे पाइवट कर दी जाती है तो जो उसका वेट होता है वो एक्ट नहीं करेगा, तो हम इसका वेट नहीं शो करेंगे। अगर ये सेंटर के अलावा कहीं और पाइवट हुई होती तो हम इसका वेट को शो करते, लेकिन ये सेंटर पे पाइवट है तो हम इसका वेट शो नहीं करेंगे। ठीक है। अब क्या है, अब इस पे दो वेट रखे हैं, एक 20 का एक 12 का, और इनका जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो है 19 एंड 35। तो 19 की मार्किंग पे फर्स्ट वाला वेट है, मतलब कि फर्स्ट फोर्स है जो कि है 20 GF की, और 35 सेंटीमीटर की मार्किंग पे सेकेंड फोर्स है, और सेकेंड फोर्स कितने की है 12 की। ये दो हमारे पास फोर्सेस हो गए ये। अच्छा, अब सबसे पहला हम काम करेंगे कि जो दोनों फोर्सेस हैं इनके डिस्टेंस निकालें। तो जो फर्स्ट वाली फोर्स है उसका डिस्टेंस अगर तुम फलक्रम से देखो, डिस्टेंस हमेशा फलक्रम से नापा जाएगा, तो फलक्रम से इसका डिस्टेंस हो गया 25 माइनस 19। जब भी आपको किसी फोर्स का डिस्टेंस निकालना हो तो हमेशा फलक्रम से, जो फलक्रम की मार्किंग है और जो फोर्स की मार्किंग है इनको माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही सेकेंड वाली फोर्स का निकालें। सेकेंड फोर्स की मार्किंग 35 पे है, फलक्रम 25 पे है, माइनस कर लीजिए तो इसका डिस्टेंस आ गया 10। अच्छा, अब इसमें कह रहे हैं कि विच फोर्स प्रोड्यूसेस द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब हमको ये देखना है कि इन दोनों में से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो अगर तुम F1 पे ध्यान से देखो तो F1 इस स्केल को इस डायरेक्शन में घुमाएगा, जैसे फलक्रम है तो फलक्रम के चारों तरफ ऐसे घुमाएगा, तो मतलब F1 इज प्रोड्यूसिंग द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो पहले तो कहा था कि ड्रॉ द डायग्राम, तो डायग्राम तो बन गया। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि विच फोर्स प्रोड्यूसेस द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो आप देख सकते हो इसमें कि कौन सी फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ पे देखो F1, so F1 is producing anti-clockwise movement. ये सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं कि इज द रॉड इन इक्विलिब्रियम। अब ये रॉड इक्विलिब्रियम में तभी होगी अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों इक्वल आ जाए। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो चलिए निकाल के देखते हैं। तो ये जो F1 है इट इज़ प्रोड्यूसिंग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालें पहले तो हम। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देखिए कैसे निकलेगा, F1 इंटू D1। तो F1 कितना है 20, D1 कितना है 6, तो ये आ जाएगा 120 GF सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसी डायग्राम में देखिए जो F2 है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो अब क्लॉकवाइज मूवमेंट निकाल लिया जाए। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है F2। तो F2 कितना है 12 और D2 कितना है 10, इसका आ गया 120 GF सेंटीमीटर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ये जो रूल है ये बैलेंस्ड है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट
is equal to clockwise moment therefore rule is balanced। इसका मतलब ये बैलेंस्ड है। तो कभी भी बैलेंस पता करना हो है कि नहीं तो आप यही तरीका रहेगा इसमें। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब थर्ड पार्ट को समझना, फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि इफ़ द डायरेक्शन ऑफ 20 GF फोर्स इज रिवर्स्ड। अब ये जो 20 GF वाली फोर्स थी ना, ये वाली, इसका डायरेक्शन रिवर्स, इसको ऊपर कर दें, यानी कि F2 पे तो हमें कोई चेंज नहीं करना है, F2 तो इधर ही रहेगा, बस F1 को ऊपर कर देना हमें। तो अगर मैं आपको इसका डायग्राम दोबारा दिखाऊं, 0 50 25 पे बैलेंस्ड है। अच्छा, 19 जो था, यहाँ पे जो फोर्स लग रही थी, अब उसका डायरेक्शन कह रहा है चेंज कर दो, यानी कि F1 अब ऊपर की तरफ कर दीजिए। F2 35 पे था, उस पर कोई चेंज नहीं, वो जैसे था वैसे ही रहेगा। अच्छा, अब देखो, अगर मैं मोमेंट की बात करूं तो इसमें F1 ये निकाल रहा है क्लॉकवाइज मोमेंट और F2 वो भी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो जब दोनों फोर्सेस क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल रही हैं और आपसे कहा है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, देखिए हमें जब भी रिजल्टेंट मोमेंट निकालना होता है तो हम जितने भी मोमेंट्स हैं उनको कैलकुलेट कर देंगे। अगर दोनों मोमेंट ऑपोजिट हैं, मतलब एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो रिजल्टेंट के लिए माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर दोनों मोमेंट सेम डायरेक्शन के हैं, मतलब दोनों क्लॉकवाइज हैं या दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो रिजल्टेंट के लिए ऐड कर देते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ मोमेंट ऑफ F1, तो वो आप कहेंगे कि क्लॉकवाइज है। मोमेंट बाय F1 फॉर्मूला होगा F1d1। F1 है 20 और उसका जो डिस्टेंस है वो है 6, 120 GF सेंटीमीटर, और डायरेक्शन कौन सा होगा, क्लॉकवाइज। अब मैं अगर मोमेंट निकालूं F2 की वजह से, मोमेंट बाय F2, तो F2d2, तो F2 है 12 और उसका डिस्टेंस है 10, तो ये आपके पास आएगा 120 GF सेंटीमीटर। अच्छा, डायरेक्शन देखो तो इसका भी क्लॉकवाइज है। अब दोनों फोर्सेस ने क्लॉकवाइज मोमेंट निकाला, तो अगर मैं यहाँ से आपसे रिजल्टेंट पूछूं, तो रिजल्टेंट के लिए अगर दोनों मोमेंट सेम डायरेक्शन में हैं तो आपको हमेशा ऐड करना है। तो 120 प्लस 120 दैट इज 240 GF सेंटीमीटर, और डायरेक्शन यही रहेगा, क्लॉकवाइज। अब ये ध्यान रखना कि अगर दोनों मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन के होते, एक क्लॉकवाइज होता और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो आप माइनस कर देते रिजल्टेंट के लिए, और साइन जो है वो आप बड़े वाले का लगाते, मतलब जो भी उनमें से बड़ा होता, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हुआ हाउ टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट। न्यूमेरिकल नंबर 5 देखिएगा, इसमें जो आपको डायग्राम शो किया गया है, इसमें एक देखिए मीटर स्केल है, पाइवटेड है 50 पे। तो जब कोई भी स्केल अपने मिड पॉइंट पे पाइवटेड हो जाती है तो उस पे जो उसका वेट है वो हम नहीं शो करते हैं। अब इस पे देखिए दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक फोर्स 30 GF की 10 सेंटीमीटर मार्क पे, दूसरी फोर्स 90 की वो 20 पे। अच्छा, ये जो फर्स्ट फोर्स है इसका डायरेक्शन ये होगा, सेकंड वाली फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। अब अगर आप पहचानिए यहाँ पे, तो ये वाली जो फोर्स है F1, ये प्रोड्यूस कर रही है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और जो F2 है ये प्रोड्यूस कर रही है क्लॉकवाइज मोमेंट।
पहली चीज़ तो ये पहचान लिया। दूसरा देखते हैं डिस्टेंस। ये जो फर्स्ट वाली फोर्स है ये फलक्रम से कितनी दूर है, देखो फलक्रम 50 पे है, फोर्स 10 पे है, तो फर्स्ट वाली फोर्स का डिस्टेंस हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, माइनस कर दीजिए। अब सेकंड वाली फोर्स का डिस्टेंस निकालो। सेकंड वाली फोर्स है 90 पे, फलक्रम है 50 पे, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 40। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इज़ द मीटर रूल इन इक्विलिब्रियम। अब अगर इक्विलिब्रियम में है या नहीं, इसके लिए हम दोनों फोर्सेस के मोमेंट निकाल के देखें। तो पहले तो F1 का निकालते हैं। तो हम यहाँ पे निकालेंगे मोमेंट ड्यू टू F1। तो F1 यहाँ पे है 30 GF और उसका डिस्टेंस है 40, so 30 इंटू 40, सो 1200 GF सेंटीमीटर। और अगर आप ये देखो तो जो F1 है ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है, तो डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉक। अब हम निकालेंगे मोमेंट ड्यू टू F2। तो F2 कितना है 20, उसका डिस्टेंस है 40, 800। अच्छा, अगर F2 को आप देखो तो जो F2 है वो क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा देखो, कोई भी रूल बैलेंस तभी मानी जाती है जब उसका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों बराबर आए। यहाँ अगर आप देखिए तो क्लॉकवाइज मोमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों इक्वल नहीं हैं, तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड नहीं है। सो पूछा है कि इज़ द मीटर रूल इन इक्विलिब्रियम। सो रूल इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम। रीज़न आप समझ गए हो क्यों ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एंड द क्लॉकवाइज मोमेंट ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ये सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि इफ़ नॉट हाउ द रूल विल टर्न, यानी कि रूल किस तरफ की ओर टर्न करेगी। तो आप देख सकते हैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो रूल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर जाएगी। The rule turns anti-clockwise. How the rule will turn? The rule will turn anti-clockwise. अब कह रहा है how can the rule be brought in equilibrium by using an additional weight of 25. अब मुझे इस रूल को बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करना है, मुझे एक थर्ड फोर्स लगानी है 25 GF की, यानी कि ये जो दो फोर्सेस हैं ये तो अपनी जगह पे रहेंगे। तो अगर हम इसका डायग्राम दोबारा देखें, ज़ीरो, तो एक फोर्स तो 10 पे थी, वो तो 10 पे ही रहेगी। ये है 30 GF, 50 पे इसका फलक्रम था। एक फोर्स 90 पे थी, तो वो 90 पे ही रहेगी, 20 GF। अच्छा, ये वाली फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रही थी, ये वाली फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रही थी। अच्छा, अब मुझे एक थर्ड फोर्स दी गई है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज़्यादा है, तो ये वाली फोर्स का मोमेंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो थर्ड फोर्स मुझे लगानी होगी वो राइट की तरफ लगानी होगी। इधर लगाऊंगा मैं थर्ड फोर्स। अब कहाँ पे लगाएंगे यही पता करना है, ये थर्ड फोर्स।
थर्ड फोर्स कितनी है? थर्ड फोर्स है 25 GF की, और इस थर्ड फोर्स का जो डिस्टेंस है ये हमें नहीं पता कितना है, लेट इट बी x। अच्छा, ये जो थर्ड फोर्स लगाई गई है ये इसलिए लगाई गई है ताकि ये जो रूल है ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब रूल इक्विलिब्रियम में तभी आएगी जब सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। अच्छा, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की बात करूं तो जो F1 है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल रहा है, सम ऑफ एंटी क्लॉक F1 D1, और ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं पहले ही। F1 D1 ये देखिए 1200। अब हमें निकालना है सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। अच्छा, क्लॉकवाइज मोमेंट F2 और F3 दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं। F3 भी क्लॉकवाइज करेगा, F2 तो क्लॉकवाइज था ही, तो इसका मोमेंट कैसे निकलेगा? F2 D2 प्लस F3 D3। अच्छा, F2 D2 तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 800, F3 अननोन है, सॉरी F3 आपको नोन है, F3 दे रखा है 25, और जो उसका डिस्टेंस है वो मैंने x ले रखा है। ये आ गया मेरे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब चूंकि रूल बैलेंस्ड है यानी कि इस रूल जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में कोई भी चीज़ तभी होगी जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों इक्वल होंगे। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर दें। $800 माइनस हो जाएगा तो 400, यानी कि जो थर्ड वाली फोर्स है उसका डिस्टेंस होगा 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द फल्क्रम। तो मैं फल्क्रम से अगर 16 सेंटीमीटर आगे जाऊंगा तो फल्क्रम तो 50 पे है, 50 प्लस 16 तो 66, यानी कि जो थर्ड फोर्स है सिक्स सेंटीमीटर। भाई फल्क्रम तो 50 पे है ही, और उससे x की वैल्यू आई है 16, तो 16 सेंटीमीटर और आगे जाओगे तो 66 सेंटीमीटर। Numerical number 6 says a uniform meter rule. So again we have a meter rule. So for meter rule, marking will be 0, 100, center 50. Now according to the question, this meter rule is balanced horizontally at the knife edge at 58. So the fulcrum is at 58. This is the fulcrum which is at 58. Now remember, if fulcrum is not at the center in any numerical, if fulcrum is not at the center, then at the center you will be showing the weight of the scale. So at this point we are going to show weight of the scale F1, and this weight of the scale we have to calculate. Now this weight of the scale, it depresses the rule in anti-clockwise direction. Now to balance it, we need another force which is of 20 GF, and this force is suspended from one end. Now we have the two ends, या तो फोर्स इस एंड पे लगेगी या तो इस एंड पे। अगर मैं फोर्स इस एंड पे लगाऊंगा तो इन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज कपल हो जाएगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाएगा दोनों का, तो स्केल तो बैलेंस्ड होगी नहीं। इसलिए ये जो वाली फोर्स है वो मुझको इस एंड पे लगानी पड़ेगी। अगर मैं इस एंड पे लगाता हूँ, ये देखो
तो ये वाली फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगी जो कि एंटी क्लॉकवाइज को बैलेंस कर देगा। तो ये अब सबसे पहले तो मैं दोनों फोर्सेस के डिस्टेंस निकालूं। अगर मैं यहाँ पे d1 निकालूं, डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट फोर्स, तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो फर्स्ट फोर्स है वो 50 पे है, फलक्रम 58 पे है, माइनस कर दो तो डिस्टेंस आ गया 8। अब दूसरी वाली फोर्स का डिस्टेंस निकालें। फोर्स 100 पे है, फलक्रम 58 पे है, तो माइनस कर दो 100 माइनस 58। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास मीटर स्केल थी, 0 100 इसकी मार्किंग थी, 50 पे सेंटर होगा और फलक्रम 58 पे था तो फलक्रम 58 पे लगा दिया। ध्यान रखिएगा, अगर स्केल का फलक्रम सेंटर पे ना हो तो सेंटर पे वेट दिखाओगे, उसको F1 नाम दे दो जो कि अननोन है। अच्छा, जो दूसरी फोर्स है वो 20 GF की है और इट इज़ सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, तो एंड इन दोनों में से कोई एक होना है। इधर हम लगाएंगे नहीं क्योंकि अगर इधर लगाएंगे तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो बैलेंस हो ही नहीं पाएगी, तो हमें इस एंड पे लगानी होगी। अब हमने दोनों फोर्सेस के डिस्टेंस निकाल लिए। इसका डिस्टेंस हो गया 8 और इसका 58 से 100, तो इसका डिस्टेंस हो गया 42। अब अंडर द एक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेस ये स्केल जो है वो बैलेंस्ड है। तो स्केल बैलेंस तभी होती है जब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज के बराबर हो। तो चलिए यहाँ पे हम पहले मोमेंट कैलकुलेट करें इसका F1 का। सो वो प्रोड्यूस कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट F1 अननोन है, डिस्टेंस 8 हो गया। अब हम निकालेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट F2 इज प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज मोमेंट। F2 है 20 और उसका डिस्टेंस है 42, तो ये हो जाएगा 840 GF सेंटीमीटर। अच्छा, चूंकि स्केल बैलेंस हो गई है अंडर द एक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेस, तो अगर स्केल बैलेंस्ड हो गई है तो इसका मतलब हो गया इन इक्विलिब्रियम, स्केल इक्विलिब्रियम में। तो जब कोई रूल इक्विलिब्रियम में होगी तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट is equal to sum of clockwise moment. एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये F1 इंटू 8। क्लॉकवाइज मोमेंट 840, यहाँ से F1 निकल आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो 105। अच्छा, F2 GF में था तो F1 वो भी GF में आएगा और F1 था क्या? वेट ऑफ द स्केल। तो यही हमको फाइंड करना था, वेट ऑफ स्केल। सो वेट ऑफ द रूल इज 105 GF। ठीक है।